Hello, beautiful souls. How are you today? What's up? क्या कर रहे हैं? I have chosen this time to go for my live. There's a reason. Because I wanted parents to watch me. Either parents or they can see my recorded video, whatever you feel like. But the topic that I have chosen today is very close to my heart. And I think that is very close to every parent. And if kids are watching it, then also it is really good. मैं चाहती हूँ कि लोग देखें. और लाइव पे मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट भी आई एम स्टार्टिंग द लाइव. देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच दैट हैज़ बीन रिजॉल्व नाउ एंड आई नेवर वांटेड एनीथिंग एनी प्रॉब्लम टू ओवरकम दिस लाइव बिकॉज मैं आपको बार बार बोलूँगी आज ये लाइव ये टॉपिक जो आज मैंने चूज़ किया है आर यू लिसनिंग टू योर किड्स is very close to my heart because I have two grown up kids. One is 18 and one is 10. और एज अ पेरेंट ये सब चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, मैंने फील की हैं. मे बी सिचुएशन कैन बी डिफरेंट फॉर ईच वन ऑफ अस बट वी ऑल हैव फेस्ड इट. You might have faced when you were in your school. I have faced when I was in my school. And you must be watching me on my this channel or my Facebook page or on my Instagram page that says it's all about you. And the topic is peer pressure and bullying. दोनों इंटरकनेक्टेड हैं मेरे हिसाब से. और जो आज का मैंने टॉपिक चूज किया है आई वॉन्ट टू आस्क एवरी वन ऑफ यू, आर यू रियली लिसनिंग टू योर किड्स और you are just giving gyan, do this, do that. I want you to actually think on this कि क्या हम सुन रहे हैं अपने बच्चों को या हम सिर्फ उन्हें ज्ञान देते हैं बेटा ये सही है और ये गलत है. हाँ, एज अ पेरेंट ये डेफिनेटली हम करते हैं, ये काम करते हैं and there's no doubt in that. So hi, I am Preeti Kapoor and I call myself proudly a coach with a difference. Yes, this is not my profession. I'm not a psychiatrist. I'm not a psychologist. I'm not a person. But yes, as a mother of two, my kids, me, and I think many among us, बहुत सारे जो लोग ये देख रहे हैं, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, we all have faced this. So why I call myself a coach with a difference, because yes, I am not a specialized coach for anything, but yes, I know where the guidance is needed. I know where my advice is needed. I know where things are not right and I have to jump in no matter what. Because this community, it's all about you, or a group is a group where we discuss those topics. हम उन topics को देखते हैं और समझते हैं और उसके ऊपर क्रिएटिव्स डालते हैं, लाइव्स करते हैं, टॉक शोज करते हैं जो या जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, चाहे वो कोई भी हो. क्योंकि या तो हम इनके बारे में बात नहीं करते, या जब ये टॉपिक आता है ना किसी सोशल गैदरिंग में या किसी भी फ्रेंड के बच्चे के साथ, तो बोलते छोड़ ना यार, सबके साथ होता है, इट्स ओके. नो, इट्स नॉट ओके. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ओके. When I talk about this one such topic, because in the past I might have touched many topics that nobody wants to, like breakups or relationships, so much anxiety. But when I talk about this topic, actually I get goosebumps. Yes, I get goosebumps because the topic is peer pressure and bullying. Peer pressure सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता, बड़ों के साथ भी होता है. एंड आई थिंक अगर आप ये लाइव आज देखें, कल देखें, परसों देखें या कभी भी देखें, सो यू ऑल कैन रिलेट टू मी. येस, you all have faced it. Reason can be anything. It could be, anything. But still, I want to say upfrontly, and I'm coming up and taking up this topic because जब 3 साल या 2 साल से हमारे बच्चे घर पे बैठे हैं और जब उनको अब स्कूल जाना पड़ रहा है,
आफ्टर 2 years, तो आप समझो उनका मेंटल स्टेट क्या है. But still they are facing this peer pressure. It can be anything. It can be anything. Trust me, anything. बुलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे बुलिंग के बारे में, आज नहीं 10 दिन बाद, मे बी इन अप्रैल, बिकॉज आई हैव डिवोटेड दीज 2 months just talking about these. And I want each one of you who is present in my life or who is watching me live should come forward and talk about it, because guys, it's the right time now. Come forward and talk about it, because peer pressure एक ऐसा टॉपिक है, बड़े छोटे, टीनेजर्स, 10 साल का बच्चा हु इज नॉट इवन टीनेजर और वो बीच में है अभी, नाइदर ही इज अ टीनेजर, नाइदर ही इज अ किड, उसके साथ में कैसे डिफरेंट पीयर प्रेशर के इश्यूज आते हैं. और क्या आप क्या समझते हो पीयर प्रेशर क्या होता है? ये एक ऐसा एक्चुअली दबाव है ना जो हम लोगों के ऊपर बनाया जाता है, और हम ही लोग अपने बच्चों को एक्चुअली पीयर प्रेशर में धकेलते हैं. अभी 17th को आई एम कमिंग अप विद अ टॉक शो विद अ पर्सन who has actually faced it and has helped lot many kids onto it. वो लाइव भी मैं चाहती हूँ आप सब लोग देखें, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट करें और देखें. बट पीयर प्रेशर एक ऐसा टॉपिक है कि जब आपका बच्चा आकर आपसे कुछ इसके बारे में बात करता है कि मम्मा, आज मेरे सब फ्रेंड्स ने मेरा मजाक उड़ाया कि मेरे पास साइकिल भी नहीं है, और आप बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगी. ठीक है, आप दो काम करते हो उस टाइम पे, या तो आप मार्केट जाते हो साइकिल खरीद देते हो, या आप उसको समझा देते हो कि बेटा कोई बात नहीं, छोड़ दो. पर क्या आप समझ पा रहे हो कि वो बच्चा जो आपका खेलने जा रहा है बाहर, वो रोज जब इस चीज को सुन रहा है कि सारे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, मेरे पास साइकिल नहीं है, मैं कैसे चलूं. मैं ये सिर्फ 10 साल के बच्चे की बात बता रही हूँ. कोई बात नहीं, बाइसाइकिल है, आपकी भी आ जाएगी. वंस यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट, आइदर इट कैन बी योर बर्थडे और यू माइट हैव अर्न समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, बट डोंट जस्ट लेट इट गो. आप सोच के देखो, जब आपका बच्चा आपके पास आता है कुछ भी बात करने के लिए, मैं ये जर्नल बोल रही हूँ, ये मैंने भी बहुत बार किया होगा, जाने और अनजाने में. जब भी बच्चा आता है कि मम्मा मुझे कुछ बात करनी है, मम्मा आज ये हुआ, आज वो हुआ, या जब हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पिछले 2 साल से, तो या तो हम अपने लैपटॉप पे बिजी होते हैं, ठीक है, या हम बोलते हैं बेटा बाद में आना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है. जस्ट टेल मी, आर यू विद मी ऑन दिस पेज? एंड आई नो, आप अंदर से जानते हो, 100 में से 99.9 पीपल विल से yes to it. Yes, I myself might have done. हम लोग ये करना नहीं चाहते हैं बट ये हो जाता है. तो आप सोच के देखो, जो बच्चा आपसे बात करने आया था और आपने उसकी बात नहीं सुनी, तो ये सारी बातें कहाँ जाएंगी? ये सारी बातें जाएंगी, क्योंकि फ्रेंड्स तो रहे नहीं, स्कूल है नहीं, स्कूल अभी स्टार्ट होंगे, तो ये सारी बातें जाएंगी या तो सोशल मीडिया पे, राइट, या एक ऐसे फ्रेंड से जो शायद उसको सुने और समझे. सो दिस इज माई पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू. वेन एवर योर किड कम्स टू यू, नो मैटर वॉट एज ही और शी इज इन, या आपका पार्टनर भी अगर आपसे बात करने आता है, लीव एवरीथिंग असाइड एंड जस्ट लिसन. That's why I chose this topic. Are you listening to your kids? Because जो बच्चा peer pressure में है, या जो भी बच्चा इन सब चीज़ों से जूझ रहा है, बुलिंग से जूझ रहा है, जब बॉयज स्पेशली बड़े हो रहे होते ना, देर आर सो मेनी चेंजेस इन their body that comes up. Sometimes they go chubby, sometimes they they don't put on height very easily. तो उस टाइम पे जब बच्चे, जो उनका पीयर ग्रुप होता है और वो उनका मजाक उड़ाता है ना, यार यू लुक लाइक अ गर्ल, ये क्या हुआ, तू इतना मोटा क्यों हो गया, तू अपना पेट देख, यू नो ये सब बातें जब आपका बच्चा आकर आपको बताए, जो डोंट लेट इट गो. प्लीज लिसन टू योर किड्स.
बिकॉज़ जब वो आपसे ये बात करता है ना, वो सिर्फ़ इसी उसमें करता है कि मम्मा मुझे क्या आंसर देना चाहिए? लड़ूँ, फाइट करूँ, नो बोलूँ या उसकी बात सुन के हँस के चला जाऊँ? हम में से कितने लोग रोज़ सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं। आज ही मैंने कोई पोस्ट पढ़ा, माय डॉटर वाज़ शी इज़ 18 और वो मुझे पढ़ के सुना रही थी कि एक 13 इयर्स ओल्ड किड हैव कमिटेड अ सुसाइड एंड यू नो व्हाट वाज़ द रीज़न फॉर इट? क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ़्स में इतने बिज़ी हैं कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं गो एंड प्ले गेम्स, ठीक है? सो गेम्स उनका होता है मोबाइल पे या लैपटॉप पे या आपके पीसी पे, गेमिंग पीसीज़ पे, जो आजकल ट्रेंड पे हैं। उस टाइम पे उस बच्चे ने किसी एक गेम में 40,000 अपनी मम्मा के लगा दिए बिकॉज़ यूजुअली हम अपना फ़ोन दे देते हैं और अकाउंट से जाकर 40,000 उस गेम के ऊपर उसने लगा दिया एंड ही लॉस्ट दैट मनी। ही लॉस्ट दैट 40,000 और जब बैंक का मैसेज गया उस लेडी के पास एंड शी रेड दैट मैसेज, सो शी सेड अपने बेटे को स्कोल्ड करके कि तूने ऐसा क्यों किया? मैं घर आके तेरे को बताती हूँ एंड व्हेन यू नो शी वेंट होम इट वाज़ टू लेट। दिस किड हैज़ कमिटेड सुसाइड। आप सोच सकते हो 13 साल के बच्चे में सुसाइड, ये सब चीज़ें कैसे आई? क्या हम लोगों ने ये सब फेस नहीं किया? हमारे फ्रेंड्स हमको नहीं चिढ़ाते थे? क्या हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स हमें बुली नहीं करते थे? टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे क्लासमेट्स सब हमें बुली करते थे। ये किसी न किसी के साथ तो हुआ ही होगा। हाइट छोटी है, कैसी शक्ल है, इतने सारे पिंपल्स क्यों आ गए? स्पेशली गर्ल्स फेस ऑल दिस, राइट? उस टाइम पे ठीक है यार, आई एग्री हम लोगों के पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड नहीं थे, बट व्हाई वी हैवंट, आपने कभी सोचा है हम लोगों ने ये स्टेप क्यों नहीं लिया कभी भी? क्यों नहीं लिया? क्योंकि शायद हमारा ध्यान इन सब गैजेट्स और इन सब चीज़ों की तरफ नहीं गया और या हम इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थे। आज की डेट में 2 साल कोविड में रहने, घर में रहने के बाद किड्स हैव एक्चुअली have become more sensitive and more mature. So, how we need to tackle it, that we have to learn. Really, trust me, we have to learn. अगर आप मेरे पोस्ट पढ़ेंगे तो मैंने उसमें एक बहुत अच्छा जो छोटा सा एक एग्जाम्पल भी दिया था कि 12th की आफ्टर पार्टी के बाद कोई बच्चा आके अपने घर पे बोलता है अपनी दूसरी फ्रेंड को कि यार आज तो सबने बियर ट्राई किया, सब अपना इंस्टाग्राम स्टेटस डाल देंगे कि वी हैव ट्राइड बियर। हम क्या डालेंगे? वी हैवंट ट्राइड। This is the peer pressure. This is not bullying, but this is the peer pressure part of that subject. तब इस उस पे आप क्या करोगे? पहले तो बच्चा सोचेगा कि मैं बियर ट्राई करूं बिकॉज मुझे तो लूजर्स लूजर्स बोलेंगे सारे फ्रेंड्स। तो वो बियर ट्राई करने के लिए क्या करेगा? या तो वो आपके बार में जाएगा या वो किसी फ्रेंड के साथ ट्राई करने की कोशिश करेगा। बट अगर आप अपने बच्चों को सुनते होंगे तो सच्ची में ट्रस्ट मी आपका बच्चा आकर आपसे बात करेगा और बोलेगा कि आज सबने ट्राई किया और मुझे भी ट्राई करना है। अदरवाइज वो लूजर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने उस टाइम ये नहीं बताया कि राइट एज टू स्टार्ट ड्रिंकिंग इज 21। करेक्ट? आप क्या बोलोगे? छोड़ दो ऐसे फ्रेंड्स को, कोई जरूरत नहीं है ऐसे फ्रेंड्स की। करेक्ट? बट अगर वो उस फ्रेंड को छोड़ देगा तो उसके और फ्रेंड्स कहाँ से बनेंगे? व्हेन वी आर स्टेइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, जब हमारे एक या दो ही फ्रेंड्स स्कूल में बनते हैं, अगर हम हर चीज़ में उनको नो 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 करते रहेंगे, जो बच्चों की मेंटालिटी है, तो आप ये सोच के चलो और ये सोच के समझ के एक बार देखो कि उस बच्चे के जब कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे तो वो कितना लोनली फील करेगा बिकॉज पेरेंट्स आर बिजी इन देयर लाइफ, दे आर बिजी विद देयर ऑफिस वर्क, दे आर बिजी विद अदर टेंशंस, उनके पास टाइम नहीं है बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। जो फ्रेंड्स थे वो ऐसी चीज़ें करते थे जो बच्चे को नहीं करनी थी, तो बच्चा उनसे भी कट गया। सो द बेस्ट वे इज़ लिसन टू योर किड्स, अंडरस्टैंड देम, टेल देम टेल देम द रियलिटी, डू द रियलिटी चेक विद देम, टेल देम वेरी क्लियरली कि ठीक है हम बियर ट्राई करेंगे, हम इकट्ठे ट्राई करेंगे। ठीक है? तो तुम्हारी फ्रेंड ने तो छुप के पेरेंट्स से किया ना, ओपनली नहीं किया, है ना? तो हम दोनों साथ में बैठ के बियर ट्राई करेंगे बट व्हेन यू आर 21। ट्रस्ट मी, जो वो कॉन्फिडेंस आएगा ना आपके बच्चे में, वो आपको दिखेगा और वो उसको हेल्प करेगा
इस पीयर प्रेशर को बीट करने के लिए हम लोग still went out because we are adults. We call ourselves adults, right? We went out. Went out means हम लोग चिल्ला देते हैं, हम लोग स्क्रीम कर देते हैं, we fight and things are resolved. Understand the situation of kids. They are very innocent. They don't know what is right and what is wrong. And when I'm talking to you, trust me, every time I tell people, I have two kids with the age of 7 years of gap, and बहुत difference होता है ऐसे बच्चों को बड़ा करने में. But I proudly say yes, we are connected as a family. कि कुछ भी उनकी लाइफ में होता है ना, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, तो we as a parent knew about it. We as a parent knew about it and we tried to help them. There are different ways. आप स्टोरीज बताओ, आप अपना बचपन उनके साथ शेयर करो, आप बताओ कि आपने भी गलतियां की थी. डोंट ऑलवेज ब्लेम योर किड्स फॉर एनीथिंग. Tell them, yes, I also had a crush and it didn't work out. That because that was one sided. I failed. So that अगर उसको कभी कोई समझ में आ रहा है या कोई अच्छा लग रहा है तो the person should directly come and say कि मम्मा ऐसा कुछ हुआ है. So is it okay? And you have to say as a friend, as a mother and as a father, yes, it's okay. Because अगर कहीं ना कहीं आपने सुनने से मना कर दिया तो ये सारी चीज़ें, ये सारा गुस्सा, ये सारी जो भी उसके अंदर चल रहा है, या तो वो निकलेगा बाहर या निकलेगा सोशल मीडिया पे. सो यू चूज व्हाट यू वांट टू डू विद योर किड्स. यू नो, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यार यू आर हेल्पलेस, यू कांट हेल्प. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेक somebody else's help. किसी और की मदद लो. बट डोंट लेट इट गो. डोंट लेट इट गो. सिर्फ सुना और उसको बिल्कुल भूल मत जाओ. अगर वो आपसे पीयर प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, अगर वो बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड्स सारे ये कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज सुनो, समझो एंड देन ट्राई टू गिव अ सोल्यूशन और ट्राई टू रिजॉल्व इट. अगर वो बोल रहा है मुझे क्लास में बच्चे बुली कर रहे हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ, मैं लड़की जैसा लगता हूँ, मैं लड़की जैसा बात करता हूँ, मैं लड़की जैसा चलता हूँ, please make them understand and talk to the authorities. But don't just let it go. Because जब आपने इसको let go कर दिया, चीज़ें वर्स हो जाएंगी और इतनी वर्स हो जाएंगी कि यू कांट इवन थिंक कि वो कहाँ तक सोच सकता है. बिकॉज आज की जनरेशन, आज के जो बच्चे हैं, उनका दिमाग आपसे 10 times फास्टर चलता है. मे बी फ्रेंड्स, मे बी anybody else, maybe you can't even imagine कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में. आप सोच भी नहीं पाओगे. अगर आपका बच्चा 15 मिनट चुपचाप बैठा है ना, प्लीज पूछो उससे क्या चल रहा है बेटा, क्या सोच रहे हो, क्या हुआ, कुछ स्पेशल हुआ, कुछ बताना है. फाइंड दैट टाइम एंड टॉक टू देम. आई नो बहुत ईजी है बातें करना और बहुत ईजी है ये सब बोलना, बट मैं ये सब चीज़ें इसीलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज ये सब चीज़ें हुई हैं और वी हैव टैकल्ड इट एज पेरेंट्स. yes, we have tackled it. We failed sometimes, but again we took help from someone. So please don't hesitate in taking help from someone about this topic, because this peer pressure and bullying is actually it's not like a trauma, but it's like a sin. And we need to, somebody has to come forward and stop it. And I need people who should come forward कि हाँ हुआ है ये, and they should share their case studies. We are having panel discussions on my this community, my page. Please come there, support us. We don't need money, we don't need anything from you, we just need your experiences. और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पब्लिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो प्लीज़ राइट इट टू अस हाउ वी कैन टेक योर क्वेश्चंस. बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दबे होंगे इन बच्चों के मन में जो ये बोलते भी नहीं होंगे, क्योंकि मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे अगर हमने ये बता दिया तो क्या होगा. पीयर प्रेशर सबसे बड़ा तो हम देते हैं बच्चों को. उसके मार्क्स देखे हैं, अपने मार्क्स देखे हैं? नो.
एवरी किड इज नॉट सेम। आप लोग मुझे एक चीज बताओ, 12th की मार्कशीट आज कहाँ काम आ रही है? 10th की मार्कशीट कहाँ काम आ रही है? Don't you think everybody should have that choice कि they can choose their own profession? हम भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, they can also do something. That's not necessary if you are a doctor that your kid will wants to become a doctor. Please understand. ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने 12th में साइंस स्ट्रीम लिया था तो आपका बच्चा भी 10th के बाद साइंस स्ट्रीम को चूज करे। मे बी उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी। And take help of the counselors. There are so many counselors around. There are so many people who help these kids. बट उसको उस वाले पीयर प्रेशर में मत डालो। उसको वो पीयर प्रेशर का एक और नया प्रेशर मत दे दो। वो ऑलरेडी जूझ रहा है अपनी चीजों से। सो लेट योर किड बी फ्री। डोंट टेल देम आई एम अ लॉयर एंड यू हैव टू बिकम अ लॉयर, आई एम अ डॉक्टर यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर। डोंट सेट योर मार्किंग पॉइंट्स टू देम। And you, if you need some psychologists, some good counselors, some child therapist numbers, ask us, we will give you. We will not ask you who you are, कितना बड़ा बच्चा है, no, we will not ask anything. But आज की डेट में ये कोरोना टाइम से अभी तक जो ये डिप्रेशन रेट्स जो सुसाइडिकल रेट्स अमंग किड्स बढ़ते जा रहे हैं, we need to talk about it. Please come forward and talk about your cases, talk about to your kids. Just don't ignore them, please. It's my humble request to each one of you. I know लाइव अभी लोग नहीं होंगे, वीडियो कहीं ना कहीं से तो कैसे भी करके वायरल होगा, पहुंचेगा। इसको प्लीज सुनो, समझो और थोड़ा सा कनेक्ट करो, बिकॉज वी एज पेरेंट्स कैन बिकम अ कम्युनिटी एंड कैन ब्रिंग अ चेंज। आई नो वी ऑल हैव आवर ओन चैलेंजेस। हम सबके पास अपने चैलेंजेस हैं, सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस। बट इन बच्चों के पास कुछ नहीं है, दे जस्ट हैव पेरेंट्स। सो सबसे पहले अगर बच्चा बुलिंग या पीयर प्रेशर को फेस करता है ना, वो पेरेंट्स के पास आता है। ट्रस्ट मी, ये मैं मानूंगी ही नहीं, ना मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगी कि बच्चा पेरेंट्स के पास नहीं आता। इन एनी फॉर्म फर्स्ट ही अप्रोचेस पेरेंट्स। जब पेरेंट्स नहीं सुनते हैं, देन ही टेक्स द नेक्स्ट स्टेप। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन दिस। सो it's my personal request, when your kids come and say something, please listen. Don't just hear them out. Listen, understand, because they need help. That's why they are coming to you. अगर बच्चे सब कुछ अपने आप रिजॉल्व कर सकते होते तो हमारे कंट्री में इतने सुसाइडिकल केसेस नहीं होते। हम रोज नहीं सुन रहे होते कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया या बच्चा डिप्रेशन में चला गया ड्यू टू पीयर प्रेशर या ड्यू टू बुलिंग इन स्कूल, कॉलेजेस और इन नेबरहुड। ट्राई टू फाइंड आउट कौन से फ्रेंड्स है, किन के साथ उठ रहा है, किन के साथ बैठ रहा है। आई नो दे नीड प्राइवेसी, प्राइवेसी दो, बट एज अ पेरेंट्स कीप अ वॉच ऑल्सो। डोंट get involved in your life so much that one day you regret that you can't be a good parents. Our time was different, guys. We have faced all this and we have come out because we never reacted. We were not sensitive. We had friends to play with. But now the kids don't have that luxuries. They have gaming, which we only tell them to do. They have PCs, they have mobiles, they have Xboxes and whatnot. So today, I took this courage to come forward and talk about this topic because I have faced it and I took my kids out from them. And I want every parent to come forward and talk about it. We are coming up on on our O Zindagi talk show that is coming on 17th and 12:30 at 12:30 17th को. Do watch it. Uh, a professional is coming over there who has already dealt with these type of kids and she'll be talking a lot about peer pressure. She'll be talking a lot about what
as a kid faces, what is the age that you need to understand that the kid is going through a peer pressure, how as a parent or how as a family you can help your kid, and lot more. Then we are also coming out with panel discussion, where I inviting all of you to come forward and tell me. You can write to me, you can message me, and you can tell me, yes, I want to come forward and talk about this peer pressure. And it will be a panel discussion where we'll be discussing cases, where we'll be talking to people how to deal with it. We have professionals coming in, or we are also coming up with another thing, that is ask me anything, where you can pour all your questions related to peer pressure कि ये हो रहा है तो क्या करें. Please understand, कई बार एज अ पेरेंट्स हम लोग ब्लैंक होते हैं, बट अगर चार पेरेंट्स सेम चीज को सोचेंगे तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा. सो थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, because we all should help each other, because it's a community, it's all about you, where we are there to hear you out, we are there to listen you. So please come forward. This is my humble request. I'm Preeti Kapoor, now signing off and telling all the parents, all the people, all the students who want to talk about it, yes, हमारे साथ ये हुआ था, to please come forward and talk to us. We need you. And trust me, we will not be breaching your identities. We will not be making, you a subject for anything. But yes, we will be there to help you out. So let's fight together with peer pressure and bullying. Keeping my thumbs up and looking forward more people to join in my community and make this like an awareness program where no kid is being bullied and where no kid is under peer pressure. And as a parent, what you have to do, keep listening to your kids, because you are their first best friends. Okay, so this is Preeti Kapoor signing off. Bye bye. See you soon in my next O Zindagi talk show that is coming on 17th of March at 12:30. Do keep watching my space, that is my Facebook page, my Insta page that says it's all about you. Bye bye.